ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश पुस्तक रखा है यहाँ पर। हरे कृष्ण। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, चर्चा हिंदी में करेंगे। ओके। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 9 श्लोक 21। सर्वात्मनः समदस्यो यद्वयस्यानङ्गतेः तत्कृतं मति वैषम्यं निरवध्यस्य न कच्चित्। Sarvatma, of one who is present in everyone's heart. Samadrasha, one who is equally kind to one and all. He, certainly, Advayasya, of the Absolute. Anahankruteha, free from all material identities of false ego. Tat Krutam, everything done by him. Mati, consciousness. Vaishamyam, differentiation. Niravadyasya, freed from all attachment. Na, never. Kvachit, at any stage. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Being the absolute personality of Godhead, He is present in everyone's heart. He is equally kind to everyone, and he is free from the false ego of differentiation. Therefore, whatever he does is free from material inebriety. He is equally balanced. Purport: because he is absolute, there is nothing different from him. He is Kaivalya, there is nothing except himself. Everything and everyone is manifestation of his energy, and thus he is present everywhere by his energy. Being non-different from it, the sun is identified with every inch of the sun rays and every molecular particle of the rays. Similarly, the Lord is distributed by his different energies. He is Paramatma, or the Super Soul, present in everyone as the supreme guidance, and therefore he is already the chariot driver and counsel of all living beings. When he therefore exhibits himself as a chariot driver of Arjun, there is no change in his exalted position. It is the power of devotional service only that demonstrates him as the chariot driver or the messenger. Since he has nothing to do with the material conception of life, because he is absolute spiritual identity, there is for him no superior or inferior action. Being the absolute personality of Godhead, he has no false ego, and so he does not identify himself with anything different from him. The material conception of ego is equibalanced in him. He does not feel, therefore, inferior by becoming the chariot driver of his pure devotee. It is the glory of the pure devotee that only he can bring about service from the affectionate Lord. Om Agyantimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami iti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज की सुबह की श्रीमद् भागवतम की इस कथा श्रवण में स्वागत है। इस श्लोक में जो ट्रांसलेशन है उसमें बताया जाता है कि लॉर्ड बीइंग द एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ही इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट, ही इज इक्वली काइंड टू एवरीवन and is free from the false ego of differentiation. Therefore, whatever he does is free from the material inebriety, he is equibalanced. So यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है वह हर जीव के हृदय में एक परमात्मा के रूप में वो रहते हैं और इसी की वजह से वह हर व्यक्तिमत्व के साथ कृपालु है, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो ये एक बड़ा डिवोटीज के बीच में आनंदपूर्ण, बहुत ही गहन एक चर्चा का विषय रहा है कि भगवान कृपालु तो है लेकिन वो पार्शियल है या इम्पार्शियल है। पार्शियल का मतलब कि ये किसी और की ओर ढलते हैं या तो वे हमेशा वो न्यूट्रल, क्या कहेंगे हिंदी को न्यूट्रल में, निष्पक्ष, निष्पक्ष है या पक्षपाती है। सो हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु उसके बाद एक बहुत अच्छा उसका देते हैं अपना खुद का वंडरफुल एक वर्ड के द्वारा। वो कहते हैं कृष्णा इज नॉट पार्शियल और वो इम्पार्शियल भी नहीं है। वे जो है इम्पार्शियली पार्शियल है। So that is solves all the problem. लेकिन साथ में प्रभु जी बहुत सुंदर शब्द वापरते हैं कि कृष्ण जो है वो पार्शियल नहीं है, इम्पार्शियल नहीं है, वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल यानी वो निष्पक्ष भी नहीं है, पक्षपाती भी नहीं है, लेकिन जैसे जीव का हृदय का प्रेम भगवान के रूप में होता है उस प्रकार से वह जो है उनके मन सुसंगत उनसे भक्त से बिहेवियर करते हैं। सो आइए थोड़ी चर्चा करते हैं कि कैसे भगवान रेसिप्रोकल का मतलब है वो कैसे भक्तों के साथ अपना जो है प्रेम के निरूपण के रूप में सामने वो कैसे पेश आते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद एक परपोर्ट में बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं कि जैसे फूल के ऊपर एक भंवरा बैठता है तो फूल जो होता है उसकी लंबी डाली है और भंवरा बैठता है तो फूल जो है आपो आप उस भंवरे के वजन से झुक जाता है ना, नेचुरली हमने देखा है। तो श्रील प्रभुपाद उसी परपट में नीचे लिखते हैं कि उसी तरह से भगवान जो है हम्बल डिवोटी की ओर, जो डिवोटी जो नम्र है वो नैसर्गिक है कि भंवरा जब फूल पे बैठता है तो फूल झुक जाता है, उसी प्रकार से नम्र भक्त की ओर एक फूल की भांति भगवान भी जो है उसकी ओर झुक जाते हैं। ये भगवान का नैसर्गिक एक स्वभाव है। लेकिन इसमें यहाँ पर जो श्लोक में लिखा है कि वह तो इज इक्वली काइंड टू एवरीवन। तो आइए आज की जो चर्चा का जो हमारा विषय है वह इसी के संदर्भ में रहेगा, कैसे भगवान जो है हर एक की ओर, हर जीव की ओर कृपालु है। तो हम हमारे जीवन में कई बार देखते हैं कितनी सारी चीजें हम प्लान करते हैं, लेकिन और कितनी बार हमें जो है सफलता नहीं मिलती है। तो इसमें हम सोचते हैं शायद मैं ऐसे कर लूं, शायद मैं ऐसे कर लूं, लेकिन भगवान की कृपा हमारे जीवन में कैसे है उसे अगर समझना है तो वासुकी जो महान एक सर्प थे और पूरा जो चर्निंग जो है समुद्र मंथन की जो कथा है
उसमें सबसे पहले राक्षसों को पूंछ दी जाती है। अच्छा खासा पोजीशन था, और देवताओं को जो है वो वासुकी का मुख दिया जाता है। और अभी तक तो चर्निंग शुरू नहीं हुआ है, और राक्षस सोचते हैं कहीं पर ये विष्णु का कोई चाल है, शायद इसमें से उनको कुछ ज्यादा मिल जाएगा, और वो है अपना पोजीशन बदल देते हैं। और फिर हम जानते हैं कैसे वासुकी का जो विष जो है उनको सहन करना पड़ता है। हमारे जीवन में भी कई बार हम जो है मनोभाव से हम जीते हैं। दो प्रकार से हम जीवन होता है, एक तो आत्मभाव और दूसरा है मनोभाव। हिज होलीनेस गोविंद गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि जब जीव मनोभाव से जीता है अपने जीवन में, भक्त साधक, तब वह स्पेक्युलेशन सोचता है, मन के बारे में, मन से द्वारा वह केंद्रित रहता है, और उसमें स्पेक्युलेशन अपनी मनोगत परिस्थितियों का जो संकलन करना उसके नैसर्गिक होता है। और इस वजह से जो है जीवन में हमेशा विषमता आती है। शायद ये करता, शायद वो करता। हमारे एक टीचर थे, बहुत महान अपने फील्ड में है। एक दिन वो मुझे मिले और कहे, राठौड़ मैंने बहुत मिस्टेक किया। मतलब क्या हो गया सर? मैंने ये ऑर्थोपेडिक लेके बहुत मिस्टेक कर दिया। क्यों सर? आप तो यंगेस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सारे भारत में रहे हैं, अपने शरीर का ऐसा कोई हड्डी नहीं है जो आपने ऑपरेट नहीं किया। नहीं, ऑर्थोपेडिक नहीं, मुझे ना न्यूरो सर्जरी लेना चाहिए। सो ये मनोभाव है। और फिर वो नायर डेंटल में जाते थे, और इतना ये था कि वो मैंडिबल और ये यहाँ के जो हड्डियां जो ऑपरेट नहीं की थी वो ऑपरेट करने लग जाते थे। सो ये मनोभाव से जीना है। जीवन हमको एक चीज में दे देते हैं और लगता है मनोभाव से जिए थोड़े असफल रहे, और कुछ करना। और ये हर एक व्यक्ति का मनोभाव से जो जीता है उसका ये भाव रहता है, शायद मैं ये करता तो और अच्छा होता। और उसी में जो है जीवन में असंदिग्धता आ जाती है। हमारा जीवन का जो बैलेंस जो है तो नहीं रहता है। लेकिन जब हम आत्मभाव से जब जीते हैं, तब जीवन हमेशा जो है वो भगवान और भगवान की इच्छा के द्वारा, या तो वैष्णव की इच्छा द्वारा हम लगा देते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो वासुकी की जो कथा है, जो समुद्र मंथन की कथा है, इसमें राक्षस जो है वो मनोभाव से जी रहे हैं, उसलिए स्पेक्युलेशन होता है, और इसीलिए वहां पर बाद में जो है गैर समझ और मुश्किलियां होती है। लेकिन देवता जो है वो भगवान की इच्छा के अधीन रहते हैं। भगवान कृपालु, जैसे शिला प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, सूर्य का किरण हर एक के लिए होता है। आप कहाँ अपने आप को रखते हो उसके पर आपके सूर्य के किरण आपको मिलेंगे, उसकी ऊष्मा मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसके पर यह निर्भर रखता है। जैसे हमने देखा यहाँ पर यही समुद्र मंथन के बाद में जब अमृत जब निकलता है, तो हम पार्शियलिटी हम देख सकते हैं भगवान की, क्लियर पार्शियलिटी है कि मोहिनी रूप के रूप में आए, और उन्होंने जो अमृत कलश था वो सारे देवता लोगों को मोहित कर दिया, और एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के दृष्टि से ये बराबर नहीं है। बेचारे राक्षस लोगों ने भी तो मेहनत किया था, इतना सारा विष लिया था, देवता लोग को ही क्यों? भगवान पार्शियल है, देवताओं की ओर पार्शियल है, और राक्षसों की ओर वो उनकी ओर झुके हुए नहीं है। यहाँ तक कि वो राहु आता है तो राहु का सर तक काट दिया जाता है, वो विष लेके बैठ जाता है देवता बनकर। लेकिन इस कथा में एक अंतर्गत विषय ये है कि जो व्यक्ति, जो मानसिकता किसी को तकलीफ देने के लिए है, समाज में डिस्टर्बेंस करने के लिए, तो हर जीव के लिए अनुकंपा होने की वजह से भगवान ऐसी जो मानसिकता है उसको थोड़ा सा जो है दूर रखते हैं। अगर देवता और राक्षसों की बात में पार्शियलिटी करें तो श्रीमद् भागवतम में वही कथा के एग्जाम्पल पे हम और देख सकते हैं कि वृत्रासुर ये एक राक्षस था, और इंद्र
ये देवता थे, देवताओं के भी राजा थे। तो यहां पर कहां पार्शियलिटी वो आती है? यहां पर भगवान कृष्ण जो है वो वृत्रासुर की ओर वहां पर ढले हुए हैं, एक राक्षस होते हुए भी। और यहां पर इंद्र से भगवान थोड़े से क्यों ना हो, यही देवताओं के लिए सारा समुद्र मंथन किया था, उसी देवताओं के राजा के लिए भगवान जो है उससे थोड़े से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भावना जो है, नम्रता जो है, भक्ति भाव जो है, प्रेम, कृष्ण को कहा गया है प्रेमार्दे, प्रेम के देवता है। जब भक्त के जिस भी जीव के रूप में प्रेम रहता है, वो प्रेमार देव के, महाराज लिखते हैं कृष्ण ये प्रेमार देव है। गौर गोविंद गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि प्रेमार देव का मतलब है जहां पर प्रेम होता है वहां पर भगवान ढलते हैं। और इसीलिए एक राक्षस चाहे वृत्रासुर हो, लेकिन उसके हृदय में प्रेम है, भगवान उनकी ओर ढले हैं, इम्पार्शियल है। चाहे वो राक्षस हो चाहे वो देवता हो, जहां प्रेम है वहां पर भगवान रेसिप्रोकेशन देते हैं। इसी बात को आगे अगर बढ़ाए विषय को प्रेमार देव के रूप में, दुर्योधन और विदुर। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के समधी थे। सोचिए, एक जो वयस्क हो जानते हैं समधी का रिलेशन कितना सेंसिटिव होता है कि नहीं? बिटिया के ससुर जी या बेटे के ससुर जी अगर रहेंगे, तो कृष्ण के बेटा जो थे वो दुर्योधन की लड़की लक्ष्मणा के साथ शादी हुई थी, और वही दुर्योधन उन्हें अपने घर पे खाने पे बुलाते हैं एक समधी के रूप में। और मान सम्मान समधी को हमेशा रखना होता है एक दूसरे का, ये एक सामाजिक एक व्यवस्था है। और यहां पर क्या करते हैं भगवान, जब आते हैं एक संदेश वाहक के रूप में, दूत के रूप में आते हैं, और बैलेंटली उसके घर पे नहीं जाते। दुर्योधन ने दुशासन का सर्वोत्तम महल उनके लिए रखा था, अनेकों अनेक व्यंजन बना के रखे थे, लेकिन कृष्णा वहां पर नहीं जाते। अरे कृष्णा पार्शियल है। दुर्योधन कहता है कल मैंने आपको मेरे घर पे बुलाया था और अब आए ही नहीं। और वही कृष्णा बाहरी मानसिकता मनोभाव से व्यक्ति को बाहरी ये कारण बताते हैं। एक तो मुझे भूख नहीं थी, और दूसरा जहां पर प्रेम से बनता है खाना वहां पर मैं जाता। और कहाँ गए कृष्ण? विदुर के वहां। यहां पर तो दुर्योधन ने बुलाया था, विदुर ने तो उनको बुलाया भी नहीं था। बिना बुलाए भगवान पहुंच जाते हैं, और विदुर को उनके रिलेटिव भी नहीं थे बाहरी रूप से, लेकिन वो भगवान के प्रेमी भक्त थे। और इसीलिए भगवान जो है उनके घर जाते हैं और सादा केले की छिलके खाते हैं और प्रेम से उनके साथ बातचीत करते हैं। तो हमारे लिए बहुत महत्व का है, हमारे घर पे जब हम भगवान को जब ऑफरिंग करते हैं, प्रसाद ऑफरिंग करते हैं, डेटीज को ऑफरिंग करते हैं, मंदिर में हम भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, उस समय हमारा भाव क्या है ये बहुत महत्वता रखता है। किस भाव से हम सब्जी खरीदते हैं, किस भाव से हम काटते हैं, धोते हैं, और ऑफरिंग करते समय हमारा क्या भाव है। और डेफिनेटली यहाँ पर उदाहरण है विदुरानी देवी के द्वारा कि जब हम प्रेम से और भाव से जब भगवान को ऑफरिंग करते हैं, तब भगवान डेफिनेटली जो है हमारे घर पे जो है वो प्रसाद भोग ग्रहण करते हैं। एक सच्ची कथा है। इस कथा में लिखा जाता है कि एक पिताजी और एक बेटे थे। बेटा अपने पिताजी को रोज देखता था भगवान को ऑफरिंग करते हैं। एक दिन बेटा बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ, आप भगवान को ऑफरिंग करो। और जैसे हमको ये कथा पता है कि बेटा प्यार से, बेटा पिता से बोलता है मुझे कोई मंत्र नहीं आता है, मुझे आप सारे जो रीति विधि जो करते हैं वो मुझे नहीं पता है। तो कोई वादा नहीं, आप खाली जाइए और भगवान से कहिए, आप ले लीजिए, प्रसाद पाइए, भगवान पालेंगे। बच्चों का हृदय जो होता है ये इतना निर्मल होता है, और उसी निर्मलता से ये बच्चा जब भगवान से जाते हैं और भगवान से कहते हैं प्लीज पाइए, प्लीज पाइए, रोता है,
और भगवान पा लेते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन घर वालों को कुछ खाने को नहीं मिलता है। पिताजी आके कहते हैं, बेटा आप ऑफरिंग करो, मैं आता हूं। और जब कृष्ण को जब बेटा रो के कहता है, आज 3 दिन लिया, आज क्यों नहीं ले रहे आप? कृष्णा कहते हैं, आज मैं नहीं लूंगा क्योंकि तेरे पिता वहां से देख रहे हैं। मतलब यहां कृष्णा पार्शियल है या इम्पार्शियल है? यहां पर कृष्णा देखते हैं हृदय में भाव क्या है। बेटे के हृदय में भाव है, कृष्णा आप हैं, आप प्रसाद लेंगे, प्रसाद खत्म हो जाएगा। पिता के हृदय में भाव है, शायद लिया या ना लिया, कहीं कुछ और तो नहीं है, इसने तो नहीं खाया। इस शंका भाव जब हृदय में जब रहती है, तब भगवान जो है वो मांगते हैं संपूर्ण शरणागति। संपूर्ण, थोड़ा सा भी जो है वो भगवान, ही इज अ, जैसे वैष्णव आचार्य कहते हैं, ही इज अ जेलस लवर। वो मांगते हैं संपूर्णतः, छोटा सा भी अगर रह जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। नरसिंह भगवान की लीला में ये बहुत सुंदर कथा है कि एक शंकराचार्य के एक बहुत ही पार्षद मुख्य शिष्य थे, और यह जो शंकराचार्य जी के जो शिष्य थे वह श्री नरसिंह देव के महान उपासक थे, और रोज लोग आते थे, मिलते थे, बातचीत करते थे, लेकिन उनको हमेशा लगता था कि मैं नरसिंह देव के ऊपर मैं ध्यान नहीं दे कर सकता हूं। तो एक दिन वो घने जंगल में चले जाते हैं नरसिंह देव पर ध्यान करने के लिए, और तब वहां पर जो है एक शिकारी आता है। शिकारी कहता है, ओ बैरागी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले, अभी यहाँ पर भी कोई आ गया। होता है ना, हमारे साथ होता है ना, दिन भर बातें चीते काम काज, और लगता है शाम को घर जाए तो एकांत से, हाँ, अपनी गुफा में हम बैठे, किसी के साथ बातचीत ना कर। होता है अपने सबके हृदय में ये होता है। और आज इस सन्यासी को भी लगा था, अभी जंगल में आया हूं, किसी से बात नहीं करता, यहाँ पर ये शिकारी है। और शिकारी यानी शिकारी होता है, उसकी बातचीत, उसका जीवन ये समतल नहीं रहता है, अनइवन रहता है। तो बातचीत भी वो बैरागी से बात करते हैं, इसे संबोधन करके। तो मैं आया हूँ उस पीछा छोड़ने के लिए, मैं आया हूँ एक चीज को ढूंढने के लिए। कौन सी चीज? जंगल में आप पूछो, मेरी तो दादा पीढ़ियों से मैं यहीं पर जंगल में, आप मांगो मैं आपको दे सकता हूँ। हाँ, एक ऐसा प्राणी को ढूंढ रहा हूँ जो आधा सिंह का है, आधा मनुष्य का है। अरे अब भी लाता हूं, आप बैठो यहां पर। शिकारी जाता है जंगल, आधा जंगल ढूंढ पाता है, कहीं को मिलता नहीं। पूरी तीव्रता से, पूरी भावना से जंगल के ऐसे हिस्से में जाता है जहां पर कोई गया नहीं होता है। शाम हो जाती है, अब सूर्य अस्त होने, उसने प्रॉमिस किया था सन्यासी को कि अगर नहीं लाया तो मैं शरीर मेरा त्याग कर दूंगा। सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशन। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो दी एंड। और उसने अपनी जो जिस चीज को, ये प्राणी को पकड़ने के लिए उसने डोरी थी, डोरी लकड़ी से, पेड़ से बांधी, अपने गले में वो डालने वाला, उतने में एक प्राणी आ गया। अरे तू यहां पर है, गले में रस्सी बांधी और लेके आए। ओ बैरागी, ए देखो ये प्राणी तुम जो मांग रहे थे। सोचिए, नरसिंह भगवान खुद, जिनकी जो हिरण्यकशिपु मार रहे थे, तो उनके जो सर के जो बाल थे उससे बादल यहां वहां हो जाते थे। वह यहां पर एक शिकारी जो कोई भक्त नहीं है, उसके पीछे में एक नम्र गाय की भांति चल रहे हैं, और नरसिंहदेव चलते हैं और उस सन्यासी के सामने आते हैं। और सन्यासी कहते हैं, क्या हो गया? अरे देखो, आप जो बोल रहे थे मैं लाया हूं। कहा क्या है? तो देखते हैं कि जो डोरी जो है उस शिकारी के हाथ में, डोरी ऐसे ऊपर जा रही है और डोरी हवा में ही है। बाद में क्या है, उस सन्यासी को नहीं दिखता है। और तब नरसिंहदेव कहते हैं कि मैं इस शिकारी से बहुत ही खुश हूं, क्योंकि उसने पूरी तीव्रता से, पूरी संलग्नता से, पूरी भावना से, एक दृष्टि से
उसने मेरे बारे में खोज लिया और यहाँ तक कि मैं नहीं मिला तो शरीर का त्याग भी करने के लिए तैयार है। इसके लिए मैं उससे खुश हूँ, लेकिन आपको दिखने में थोड़ा समय लगेगा। अभी यहाँ पर भगवान पार्शियल है या इम्पार्शियल है? यही सन्यासी जब एक दिन अपने गुरु के साथ घनिष्ठता से वजह से बाकी के शिष्यों में थोड़ा सा ईर्ष्या होती है, तब गुरु उसकी परीक्षा लेने के लिए एक दिन भरी नदी के पार रहते हैं और नदी में बड़ा पूर आया होता है और यह शंकराचार्य जी अपने शिष्य को, बेटा आ जाओ। बाकी के सारे शिष्य रुक गए और यह जो शिष्य थे बैरागी सन्यासी, उसके हृदय में गुरु के इंस्ट्रक्शन के लिए इतना विश्वास था कि बिना शंका किए नदी में बह जाऊंगा, नदी में मैं मेरी मर जाऊंगा, उसकी कोई भीति के सिवाय वे नदी में चलने लगे। और तब वही नरसिंहदेव जो है हर पद पर, उसके हर स्टेप पर पैर में नीचे कमल आ जाता है और एक स्टेप कमल, दो, ऐसा कर कर वो जो है नदी पार कर लेते हैं और गुरु उनको जो है हृदय से आलिंगन देते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे उन्होंने गुरु पद्म वाक्य अपने गुरु के कहने पर कैसे विश्वास किया। और इसी की वजह से उन्हीं सन्यासी का नाम जो बाद में पड़ता है पद्मपाद स्वामी, वे शंकराचार्य के महान वो शिष्य थे। तो ये कहानी के भगवान कृष्ण जो है ये जो है निष्पक्ष है, लेकिन वे पक्षपात तब करते हैं जब वे है प्रेम का वो भावना देखते हैं। हमारे आज अभी ये जो समय जो है वो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का रथ यात्रा का समय है। एक छोटा सा प्रसंग देखते हैं कैसे कृष्ण जो है वो पक्षपाती नहीं है। एक राजा थे जगन्नाथपुरी के, अनंत वर्मा कोड़ गंगादेव उनका नाम था। 1078 से 1147 तक उन्होंने राज्य किया था और अभी का जो मंदिर जो बना है उसका निर्माण इसी राजा ने किया था। महापराक्रमी वे राजा थे और उस समय जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण थे धनेश्वर वर्मा करके, और ये ब्राह्मण बहुत ही शुद्ध हृदय के, एक बहुत ही गरीब, एक बहुत ही अनजान व्यक्तिमत्व थे। अब जब भी राजा अनंत वर्मा चोड़ गंगादेव जब भी भगवान को ड्रेसिंग करने आते थे जगन्नाथपुरी में, तब वे भगवान को पूरे ऐश्वर्य के साथ वो भगवान का ड्रेसिंग करते थे, पूरे ऐश्वर्य के साथ, सोने हीरे माणिक, एक शहंशाह के रूप में भगवान को ड्रेस करते थे। लेकिन हमारे धनेश्वर वर्मा के हृदय में हमेशा ये लगता है कि भगवान ये ऐश्वर्य नहीं, ये तो हमारे वृंदावन के व्रजेश तनया है। तो जब राजा चले जाते थे वो सारा ड्रेस निकाल के बाजू में रख देते और भगवान को सुंदर वनमाला, तुलसी, मोरपींछ से उनका जो है श्रृंगार करते थे। एक दिन कोई राजा कोई कारणवश आए मंदिर में और देखा तो ओ कहाँ गया वो ऐश्वर्यशाली ड्रेस, और बहुत गुस्से हो गए, किसने ये किया। बुलाया गया उस ब्राह्मण को और दोनों के बीच में चर्चा हुई। राजा कहते भगवान हमारे जगन्नाथ जी लक्ष्मीपति है, वैकुंठपति है, त्रिलोकनाथ है, उनका ड्रेस उसके मुताबिक होना चाहिए। और हमारे धनेश्वर वर्मा जी ब्राह्मण कहते हैं कृष्णा ये श्याम सुंदर है, वे नंद नंदन है, गोपीनाथ है, राधाकांत है, और उनका जो ड्रेस जो होना चाहिए, बेस जो होना चाहिए वो मधुरता से भरा होना चाहिए, ऐश्वर्य से नहीं होना चाहिए। तब ये दोनों की चर्चा बढ़ने लगी, कोई हार नहीं रहा था। तब एक महान ऋषि मुदगल ऋषि के पास उनको लेके जाया जाता है और तब ऐसा लगता है कि ब्राह्मण को लगता है कि मैं हार जाऊंगा, और तब ब्राह्मण सोचता है कि मैं अब मेरा शरीर का त्याग कर देता हूँ। अग्नि बनाता है और वो अग्नि में जाने ही जाना होता है। तब जगन्नाथ जी जो है यज्ञ पुरुष के रूप में अग्नि में से बाहर आते हैं और ब्राह्मण को प्रेम से अपनी गोदी में लेते हैं। बोलते हैं क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है? नहीं आप तो व्रजेश तनया है, नंद बाबा के आप पुत्र हैं, आपका बेस ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है बराबर है। उठने में राजा आ गया, राजा को बोला बेटा आ जाओ बेटा, क्या हो गया? बहुत सुंदर चित्र है कृष्ण कथामृत बिंदु में।
अग्नि पुरुष, यज्ञ पुरुष के रूप में है भगवान, एक बाजू में ब्राह्मण है, राइट साइड में ब्राह्मण है, लेफ्ट साइड में राजा है। और फिर कृष्ण जो है इम्पार्शियल, निष्पक्ष कृष्ण उदाहरण सॉल्यूशन देते हैं। देखिए, दिन में मैं राजा वेश हूं और रात में जो है ये मैं वृंदावन वेश, बड़ा वेश। बड़ा वेश कौन सा है? दिन का नहीं है, बड़ा वेश रात का है, जहां पर सुंदर तुलसी होती है, सुंदर वनमाला होती है। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपना जो सुंदर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कृष्णा इज इम्पार्शियल। प्रेम जो होता है ये प्रेम दोनों की ओर भगवान जो है, दोनों भक्त की ओर भगवान प्रेम रखते हैं। श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर कथा है राजा बहुलाश्व और श्रुतिदेव ब्राह्मण की। बहुलाश्व राजा महान राजा थे मिथिला देश के, और उनकी हृदय की इच्छा थी कि भगवान मेरे घर आए, और भगवान को इनविटेशन देते हैं। भगवान सारे आचार्यों के साथ निकलते हैं, और बहुलाश्व रोज अपने आदमी को भेजता था सुदूत को, कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक पहुंचे भगवान। हम भी देखते हैं ना, जब महाराज आने वाले थे कहाँ तक पहुंचे, अभी बोरीवली अभी चेक पहुंचे, टोल नाका गए, लेफ्ट टर्न अजीत पैलेस से लिया है। तो वो एक आकांक्षा उसके हृदय में थी, कहाँ, रोज एक एक दूत जाता था अभी यहाँ पहुंचे, अभी यहाँ पहुंचे। फाइनली जब मिथिला नगरी की सरहद पर जब आए और राजा अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ भगवान को इनविटेशन देने जा ही रहे थे, तब क्राउड में, उस जन समुदाय में एक कोई व्यक्ति अचानक बाहर आता है, और वो होता है श्रुतिदेव ब्राह्मण। और राजा को इनविटेशन देने के, राजा ने जब भगवान को आने के लिए कहे, तो तभी श्रुतिवर्मा महाराज श्रुतिदेव कहते हैं, कृष्णा प्लीज मेरे घर पे भी आइएगा। देखो, कृष्णा निष्पक्ष है। हमने देखा जहां प्रेम है वो जाते हैं। हमने देखा दुर्योधन के और महात्मा विदुर का एग्जाम्पल देखा, लेकिन यहां तो प्रेम दोनों बाजू में। अभी क्या करें? धर्म संकट, लेकिन भगवान के पास सॉल्यूशन हर चीज के लिए। राजा बहुलाश्व भगवान को लेकर अपने घर जाते हैं, और पूरे, और राजा भी कितने महान हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कौन आ गया बीच में, मैंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले लिया था, मैंने ऑलरेडी मेरा समय दे दिया है, भगवान ऑलरेडी मेरे लिए आए हैं। नहीं, कृष्ण ने इस प्रकार से सारी परिस्थिति को संभाल लिया। कृष्ण अपने साथ नारद मुनि, व्यासदेव, अनेक महान महान ऋषि उनके साथ थे। एटलीस्ट उस कथा में 10 या 15 ऋषि का नाम है, और इनके साथ भगवान जो है चल पड़े राजा के वहां। और राजा ने पूरे ऐश्वर्य के साथ भगवान के अपने ही सिंहासन पर बिठाया, उनके चरण धुए। बहुत सुंदर उनकी प्रेयर्स है बहुलाश्व राजा की उस कथा में। और उसी समय यह जो श्रुतिदेव ब्राह्मण की क्या स्थिति थी, वो नाराज होके रोते रोते भगवान को जाते हुए देख रहा है? नहीं, भगवान ने उसी समय अपने आप का एक और स्वरूप वहां पर धारण किया। उतना ही नहीं, अपने आप का स्वरूप भी नहीं, सारे ब्राह्मण, नारद मुनि, राजा व्यासदेव, सभी जो उनके साथ जो महान वैष्णव थे, उनका भी एक और सेट तैयार हो गया। और वे सारे जो है, वो कथा बहुत सुंदर है कि श्रुतिदेव ब्राह्मण को स्वप्न भी नहीं ख्याल था कि इतना बड़ा मुझे ऐश्वर्य मिल जाएगा। और वो जब चलते हैं, जो चलते नहीं जाते, घर पे जब जाते हैं, कृष्ण आ रहे हैं, तब ये दौड़ते जा रहे हैं, नहीं दौड़ते नहीं, वो नाचते जा रहे हैं, और अपना जो खेस है उसे सर के पर ऐसा ऐसा, वहां से शुरुआत हुआ था ये कीर्तन में नाचने का। दौड़ते जाते हैं, अपनी पत्नी को कहते हैं अरे घर में, और उनकी तो छोटी सी कुटिया थी, 2 जन भी नहीं रह सके ऐसी कुटिया थी। लेकिन कृष्णा अपने सारे पार्षदों के साथ वहां गए, और ये सारे पार्षद, उस कुटिया में उतना स्पेस सफिशिएंट था कि सारे जन समा गए। और वहां पर वो जो ब्राह्मण जो है, गरीब ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था, सिर्फ उसके पास था फल
तुलसी और जल और हृदय में प्रेम, और उस प्रेम के साथ, अश्रु के साथ वो अपनी छोटी सी कुटिया में भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है वो भावग्राही जनार्दन है। वृंदावन दास ठाकुर जो है वो कहते हैं, जे रूपे चिंतया दासे, दास जिस रूप से भगवान का चिंतन करेगा से रूप हया। भगवान जो है, हम हमारे हृदय की जो भावना है, ये भावना कैसी है, इसके ऊपर हमारा भक्ति का हार्द रहता है। जिस भाव से हम भगवान की पूजा अर्चना, भगवान का नाम लेंगे, उस भाव से भगवान रेसिप्रोकेशन करेंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं इतने साल से चांटिंग कर रहा हूं और कुछ फर्क नहीं है। नहीं, भाव हमारा क्या है, हमारी जो भावना रहेगी, अगर हम भगवान को और भगवान के नाम को अगर हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, और जिस प्रकार से ये श्रुतिदेव ब्राह्मण ने अपने घर आए भगवान की जो प्रेम से सेवा की, उसी प्रकार से हम भी अगर भाव से, प्रेम से हर चीज में हमारे जीवन, हम माला लो, हम भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करें, या तो हम अभी कोई और सेवा के लिए हम जाते, हमारे रोज बरोज की काम की भी सेवा। एक बार एक ब्रह्मचारी प्रभु मुझे पूछ रहे थे, प्रभु जी कैसे ये शक्य है आपके लिए, गृहस्थ जीवन है, भक्ति भी है, लेकिन फिर अगर हम हमारे गृहस्थ जीवन की भी गतिविधियां हम भक्तिपूर्ण भावपूर्ण से अगर करें, भावपूर्णता से अगर हम करें, तो हमारी भक्ति और कर्तव्य, ये दोनों चीजों में फर्क नहीं रहता है। अस्पताल में हमारी सेवा है, हमारे गृहस्थ जीवन में हमारी सेवा है, उस सेवा में भी अगर हम यही भाव हम का निरूपण करें, जो निरूपण हम अर्च विग्रह के सेवा के समय करते हैं, तो जो है हम जो है 24 घंटे हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। ये हमारा बहुत ही भाग्य है। लेकिन इस सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हुए हम कितने कॉन्शियस है कृष्ण के बारे में, ये हमें देखना चाहिए हमारे हृदय में, कि हाउ मच वी आर कॉन्शियस ऑफ कृष्णा बाय वाइल रिमेनिंग इन दिस मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और यही जो है, ये कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा, ये जो हमारी जो भावना है, ये हमारा प्रिपरेशन है, ये हमारी तैयारी है। और जब ये तैयारी अगर अच्छी तरह से रही, वैष्णव और गुरु परंपरा को फॉलो करते हुए, तब जब एग्जाम का जब समय आएगा, जब ट्वाइलाइट जोन आएगा, तब जो है गुरु महाराज जो है यस अपना हाथ पकड़कर हमें जो है वृंदावन में श्री श्री राधा रास बिहारी जी के हाथ में जो है हमारा हाथ सौंप देंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? हरे यस प्रभु। तो अगर हम मनोभाव से रहते हैं तो मन विचलित रहता है, but at the same time we have to be ambitious also. So how do we equate ambition to that manobhav state? Yes, there are different levels of ambition. Ambition of the mind, ambition of the externals,
And the highest ambition should be, how can I serve in every situation? That we have that we are हम जो है इस भौतिक जगत में हम देखते हैं बाहरी रूप से कि सफलता का शिखर सर करना है ना? ये सच्चाई है ना? हर एक का कि सफलता की चाबी, हर एक को ये चाबी ढूंढते हैं ना कि कैसे हम सफलता के शिखर पर पहुंचे। तो यह जो है ये भौतिक मनोभाव से ये जुड़ा हुआ है। लेकिन वही जो एम्बिशन जो है, यह हम जब अंतर्गत हृदय के भाव से देखें तो वो एम्बिशन का जो रूपांतर हो जाता है सेवा में, हर क्षण, हर सिचुएशन में। प्रहलाद महाराज के जीवन में हम देखते हैं, वो एक राजा के पुत्र थे, त्रिलोकनाथ के पुत्र थे। उनके जीवन में खाली एक ही चीज जरूरी था, लगे रहो। तो वो सम्राट होने ही वाला था, त्रिलोकनाथ होने ही वाला था, और कुछ करना नहीं था, सिंपल था। एम्बिशन सारे उसके पूरी हो सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा था कि उनके फादर का मनोभाव से क्या स्थिति हुआ था। अंत में जो एम्बिशन जो होता है, वो एम्बिशन जब मनोभाव के साथ लेता है, अंत में जो हमारे जो सीनियर जो डॉक्टर का बात कहा, मैंने मिस्टेक किया है ना, ये ऑर्थोपेडिक नहीं लेना चाहिए था। लेकिन हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी बहुत सुंदर एक कथा लिखते हैं कि वो एक सीढ़ी की कथा है। बोलते हैं कि हर कोई एक सीढ़ी पे चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, पूरा गांव ये सीढ़ी पे जाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, सब कुछ है, वो सीढ़ी के अंत पे सब कुछ है। और लोग मारामारी करते हुए, एक दूसरे को फेंकते हुए, झगड़ते हुए, जेम तेम, और एक का पैर खींचते हुए सीढ़ी पे चढ़ते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं, चढ़ते हैं, और टॉप पे जब जाते हैं तब बादल के ऊपर समझ में आता है कुछ भी नहीं है। उसके बाद में सीधा वापस नीचे गिरना होता है। और ये भक्ति तीर्थ महाराज वहां पर लिखते हैं कि ये बादल के ऊपर का हिस्सा जो है एम्बिशन का, ये भौतिक जगत में हमको बताया नहीं जाता है। तो इसीलिए एंड ऑफ द डे जब हम अचीव करते हैं सब कुछ एम्बिशन एक्सटर्नल्स में, तब एंड ऑफ द डे एम्प्टीनेस हमें नजर में आता है। लेकिन हर मोमेंट प्रहलाद महाराज की तरह कितनी तकलीफ, कितनी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अब ये आया, अब इससे मैं बाहर आऊंगा, अब तलवार लेके आया उससे बाहर आऊंगा, सांप आया उससे बाहर आऊंगा, और एक दिन मैं भी बड़ा एक भक्त बनूंगा। नहीं, वैष्णव आचार्य लिखते हैं हर परिस्थिति में कैसे मैं प्रेम से भगवान को याद कर सकता हूं। हाउ कैन आई रिमेंबर कृष्णा एवरी मोमेंट? And when we dovetail our energy, our consciousness in that direction, then there is a fulfillment right from the step 1 till we reach the lotus feet of the Lord under the direction of Guru. So that is what is internalization, living every moment in consciousness of Krishna, in service attitude. That is how we should dovetail our emotions and consciousness, rather than trying to reach top. Even in bhakti also, that is the mode of externals. I will achieve this, I will achieve that. Whatever situation you put me, Krishna, सीताराम 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 कहिए, जाके विधि राखे राम, ताके विधि रहिए. That is the success of human life. I hope I have answered your question. Thank you. Thank you. हरे कृष्ण। धन्यवाद विद्यालय।